Bismillahirrahmanirrahim. I would request the guests to be seated. A very warm welcome and a very nice evening to all of you. I would like to start today's ceremony with the recitation of the Holy Quran. I would like to request Mr. Sayyid Abdul Nasir to come on the stage and recite holy verses. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. Now we'll be playing the national anthem.
And now for the welcome speech, I'd like to call upon Mr. Akbar Jafar, who is son of former chairman Abdul Razak Jafar, late, and he's also the member of Board of Governors. Along with this, he's the CEO of Granular Private Limited and Autocraft Sales and Services Private Limited. Mr. Akbar Jafar, kindly come on the stage. Dear donors and friends of Khurshid Hospital, Assalamu alaikum. Truly grateful that you are sparing time from your busy schedules to be here with us today, which is a testament to your engagement and support. It is a great honor for me to serve on the board of governors of this accomplished hospital, which was established in 1987 as a non-profit organization. I'm very proud of the key role Murshid Hospital is playing for the underprivileged people of suburban Karachi and Balochistan. And now, due to your continued support, Alhamdulillah, we are broadening our impact. And you will be hearing the details of this shortly. Once again, thank you for being here with us and showing your commitment in making a difference. Shukriya. Thank you very much, sir. Now there is an introduction about Murshid Hospital, which will be given by our very own Dr. Abdul Sattar Isa Jafar. He is the medical director and the member of Board of Governors. Dr. Abdul Sattar Isa Jafar, kindly come on the stage. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I begin in the name of Allah, who is most merciful, who is most graceful. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے کاشف ملک صاحب نے کہا ویری اولڈ ڈاکٹر، کہنا چاہیے تھا ویری ویری اولڈ ڈاکٹر. جتنے یہاں بیٹھے ہیں آئی تھنک سو سب سے سینئر میں ہوں، خاص کر کے ڈاکٹروں میں شاید میرے سے کوئی سینئر نہیں ہوگا. آپ ہیں میرے سے؟ نہیں، وی آر بوتھ اے سیم ایج. ماشاء اللہ. مجھے ہمارے سی او صاحب کاشف ملک صاحب ہو از بیہائنڈ دس آل پروگرام، جتنی محنت کی ہے کہ آپ سب کو اکٹھا کیا ہے، مجھے کہا ڈاکٹر صاحب مرشد کے بارے میں تھوڑی سی ہسٹری دیں اور 5 منٹ میں اپنا خطبہ ختم کر دیں. میں جیسے اکبر جعفر صاحب نے کہا کہ 87 سے میں اس ہسپتال سے منسلک ہوں. By the grace of Allah, I am attached with this hospital for the last 25 years. اور
انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب تھوڑی سی ہسٹری دے دیں اور 5 منٹ میں اس کو کر دیں. تو میں پوری کوشش کروں گا کہ مرشد کے بارے میں بہت سے لوگوں کو تو پتہ ہے، بہت سو کو پتہ بھی نہیں ہے. تھوڑا سا میں بریفلی ڈسکس کروں. پہلی بات تو لوگ مجھے پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ نام مرشد کیوں رکھا ہے آپ نے؟ جناح رکھتے، سول رکھتے، عباسی رکھتے، جعفر ہاسپٹل رکھتے، بلدیہ رکھتے. یہ ایک بہت اچھا سوال ہے جو آج بھی لوگ مجھے پوچھتے ہیں، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جعفر خاندان میں ایک مدرسہ ہے جو 40-50 سال سے ہے، جس میں مولانا طفیل صاحب نے ریکویسٹ کی تھی جعفر فیملی سے کہ مجھے ایک اسلامک سینٹر بنا کے دیں جہاں غریب بچوں کو چاروں پروونس سے تعلیم حاصل کریں. انہوں نے اس کو قائم کر دیا. پھر 10 سال کے بعد انہوں نے جعفر فیملی سے پھر عرض کی کہ جعفر صاحب آپ لوگ نے مدرسہ تو بنا دیا ہے اسلامک ٹیچنگز کے، میں چاہتا ہوں کہ یہاں غریب بچوں کے لیے سندھ اور بلوچستان کے لیے ایک ہسپتال بھی قائم کر دیں. وہ بھی اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ہماری فیملی نے اور آپ جیسے ڈونرز نے مل کر اس ہسپتال کو قائم کیا. اور میں بڑی فخر سے کہتا ہوں اور میں بڑی فخر سے کہتا ہوں کہ ہم لوگ نے آرکیٹیکٹ ارشد عبداللہ کو ہائر کیا، اور اللہ کے فضل سے جب یہ ہسپتال قائم ہوا 1986-87 میں، تو اس کو فرسٹ پرائز ملا آرکیٹیکچر کے اندر. یہ ایک پرپس بیسڈ ہاسپٹل ہے اور اللہ کے فضل سے آج بھی قائم ہے. اور جیسا اکبر جعفر نے کہا ڈیلی اس کے اندر کچھ نہ کچھ پروگریس ہو رہی ہے. 88 میں جب اس کے دروازے کھلے، اس سے پہلے میں لیاقت میں ہسپتال میں تھا، مگر جعفر فیملی نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے جعفر فیملی کے سینئر ڈاکٹر ہیں تو آپ اس کی سرپرستی کریں. تو اس سے میں نے کہا کہ 88 سے میں اس ہسپتال میں ہوں، اور اللہ کا بڑا احسان ہے، بہت اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں خدمت کا موقع دیا. یہاں بہت بڑی اچھی بات یہ ہے کہ مرشد میں جیسے اکبر جعفر نے کہا مین پرپس ہمارے جو ڈونرز کا تھا کہ دیکھیں ہسپتال بنائیے مگر ہمیں نان پروفٹ چاہیے، کوئی پروفٹ ہمیں. تو اس کا پہلا نام جو ہم نے رکھا مرشد ہاسپٹل ہیلتھ کیئر سینٹر از اے نان پروفٹ آرگنائزیشن. اور ساری بات ہے کہ میری مرشد کی، تو اس لیے مرشد نے کہا کہ یہ جو ہمارے مرشد تھے مولانا طفیل، انہوں نے جب اس کی خواہش کی تھی تو اس لیے ہم نے نام ان کا مرشد کر دیا ہے. تو یہ ہسپتال 1988 کو شروع ہوا. پہلے صرف ہم نے OPD قائم کری جو 4 مین ڈسپلنس ہے، اور اوور دا ایئرز 25 سال سے ایوری ڈے کچھ نہ کچھ اس میں ترقی کی جا رہی ہے. اور اللہ کے فضل سے بہت اللہ کا احسان ہے کہ ڈیلی ویری ریگولرلی کوئی نہ کوئی اس میں امپرومنٹ اور پروگریس ہو رہی ہے. آج اس ہسپتال 2022 اینڈ تک 23 تک اللہ کے فضل سے اس میں ہمارے پاس ہر ڈپارٹمنٹ ہے. 1-2 ڈپارٹمنٹ نہیں ہے جو میں بتا دوں. پہلے یہ پرائمری سینٹر ہوتا تھا، پھر اللہ کی فضل سے اس کو ہم نے سیکنڈری کر دیا، اور ہم عنقریب ٹرشری کیئر کی طرف آ گئے ہیں. ہمارے پاس کم از کم 35 اسپیشلسٹ ہیں، سارے اللہ کے فضل سے ہائیلی کوالیفائڈ ہیں. وہ پاکستان، انگلینڈ اینڈ USA. نیورو سرجری ہے، کارڈیولوجی ہے، چیسٹ میڈیسن ہے، ICU ہے. الحمدللہ 2 چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں جو انشاءاللہ تعالی ہم اس کو امید ہے. ایک تو کارڈیک سرجری ہمارے پاس ابھی تک نہیں ہے، اور کینسر یونٹ ہمارے پاس نہیں ہے. وہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم اس کو قائم کریں گے. اور جیسے ہم سب جانتے ہیں فار اینی نیشن ٹو پراسپر اینڈ ڈیولپ بہت ضروری ہے 2 بنیادی چیزیں. 2 parameters take into significance. One is education and the second very important in my opinion is health. اور اللہ کے فضل سے جعفر فیملی نے پہلے ایجوکیشن میں کیا جو آج بھی جاری ہے، اور ہیلتھ کے معاملے میں مرشد ہاسپٹل جو یہ کام کر رہا ہے اور انشاءاللہ کرتے رہے گا. بڑی امپورٹنٹ اس کی بات یہ ہے کہ یہ 2 پروونسز کو کیٹر کرتا ہے، سندھ اور بلوچستان. سندھ کے مریض بھی آتے ہیں، بلوچستان کے بھی آتے ہیں، اور بلا امتیاز ان کو علاج کیا جائے. ہماری کوشش پوری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی مریض جب آ جائے ہسپتال میں تو جسٹ بیکاز پیمنٹ نہیں ہوتی تو اس کو واپس نہ کیا جائے. ہمارا جو مشن ہے وہ ہے ٹو بیگ، بورو اور اسٹیل. کسی طریقے سے کوشش کی جاتی ہے ویلفیئر ڈپارٹمنٹ سے یا آپ سے مانگتے ہوئے کچھ نہ کچھ اس کو ہیلپ کی جائے. ریزن بھی کہ ہمارا ہسپتال شہر سے ذرا دور ہے، یعنی جناح سول وغیرہ سے دور ہے، تو ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ اس ہسپتال میں مریض جب آ جائے تو اسی کو وہاں ٹریٹمنٹ کیا جائے. اور اللہ کے فضل سے یہ ٹریٹمنٹ جاری ہے اور انشاءاللہ چلتے رہے گا.
دوسری بڑی امپورٹنٹ چیز جو آپ نے دیکھی ہوگی جو مرشد ہاسپٹل نے ریسنٹلی جو بہت بڑا کام کیا ہے وہ دو چیزوں پہ کیا. ایک تو ہمارا پیشنٹ ویلفیئر ڈپارٹمنٹ بہت ایکٹیو ہے, اور دوسرا جو ہم نے بڑا ایک رول ادا کیا ہے وہ فلڈ ریلیف وکٹمس میں جو حال میں آپ دیکھ رہے ہیں لاسٹ 6 مہینے سے جو ہو رہا ہے, جو بربادی ہمارے ملک میں ہوئی ہے, تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم جا کے ان کی ہر طریقے سے مدد کریں. مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہمارے ہسپتال کے جو سی او نے کم از کم 100 کے اوپر فلڈ ریلیف کیمپ قائم کیے, ناٹ اونلی ان دا ہاسپٹل پریمیسز بلکہ سندھ بلوچستان میں ہماری ٹیم پوری گئی ہے, اور جتنے ان کی ضروریات ہیں وہ ہم نے پوری کی ہے. اور یہ ہمارا فرض بنتا ہے, ناٹ اونلی ڈاکٹر کا مگر ہر شہری کا, سٹیزن کو بنتا ہے کہ یہ جو ہماری عوام اس میں متاثر ہوئی ہے, اور آج بھی ہمارے پاس جو بھی مریض آتا ہے فلڈ ریلیف کا, ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو وداؤٹ اینی کاسٹ اس کو ٹریٹمنٹ دی جائے. دوسری بڑی کامیابی ہمارے ہسپتال کے لیے جو آج کل ہے اور انشاءاللہ چلتے رہے گی کہ حکومت کی طرف سے مرشد ہاسپٹل کو ریکگنائز کیا ہے صحت کارڈ کے لیے. صحت کارڈ, ہیلتھ کارڈ جس کو ہم کہتے ہیں, وہ مریض کے پاس جس کے پاس شناختی کارڈ ہے بلوچستان اپنے کے پی کا اور پنجاب کا, وہ اپنا کارڈ لے آئے اور کوئی بھی اس کو بیماری ہو اس کو ہم فری علاج کرتے ہیں, ٹوٹل فری. یعنی یہ ہیلتھ کارڈ میں ہر ڈپارٹمنٹ کا آپریشن جو ہمارے کو ہوتے ہیں, نی جوائنٹ ریپلیسمنٹ ہو رہا ہے, ہپ جوائنٹ ریپلیسمنٹ ہو رہا ہے, ہمارے پاس ڈائلسس ہے, ہمارے پاس نیورو سرجری ہے, اور ایسے اسپتال بھی ہیں پاکستان میں جہاں بائی پاس سرجری بھی فری کی جا رہی ہے. تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے, اور جیسا میں نے فیوچر میں کہا کہ ہم اور چاہتے ہیں آگے اس کو کریں, اور ایسا ایک دن آ جائیں جیسے اور ادارے ہمارے ملک میں ہیں, ایس آئی یو ٹی ہے, انڈس ہے, عالمگیر ہے, کارڈیو واسکولر ہے, ایل آر بی ٹی ہے, جو بہت بڑا فری اور کام کر رہے ہیں. جیسا میں نے کہا پیشنٹ ویلفیئر ہمارا بڑا ایکٹیو ڈپارٹمنٹ ہے, اور ہم اس کو برابر ترقی دے جا رہے ہیں, اور وہ چل رہا ہے آپ لوگ کے ڈونیشن سے. زکوٰۃ کے مہینے میں, رمضان میں, اور تھرو آؤٹ دی ایئر ہم اس میں استعمال کرتے ہیں. دوسری بڑی اچھی بات جو ہمارے ہسپتال کی ہے کہ ہم نے جیسے کہا, آپ سب جانتے ہیں کہ ڈاکٹر تو ایک ہوتا ہے جو مریض کے لیے بہت ضروری ہے, مگر میرے نظر میں, اور آپ اس پہ اگری کریں گے, کہ نرسز کا ایک بہت بڑا رول ہے. نرسز پلے بیک بون آف لائف, اور یہ ہماری جو نرسز ہیں یہ دل رات یہاں محنت کرتی ہیں, اور اللہ کے فضل سے مجھے گورنمنٹ آف پاکستان نے ہمیں گرلز ہاسٹل بنا کے دیا 30 سال پہلے, اور یہ ہماری لڑکیاں جو ہیں نرسز یہ چاروں پروونسز سے آتی ہیں, کے پی سے, بلوچستان سے, سندھ سے, اور ان کو اعلیٰ تعلیم دی جاتی ہے, اور ہمارے رزلٹس بچوں کے ایکسلنٹ آ رہے ہیں. تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے. پہلے اسکول تھا, اور اب اللہ کے فضل سے ہماری کالج آف نرسنگ بھی ہو گئی جو ریکگنائز ہو گئی ڈاؤ میڈیکل ڈاؤ یونیورسٹی سے. تو یہ اس میں بھی ہم, جیسا میں کہا کہ اچھی نرس جو ہو وہ ایک بہت بڑا, میں تو آتا ہوں 5 منٹ مریض کو دیکھا اور آگے نکل گئے, نرس جو ہے مریض کے ساتھ 8 گھنٹے تک رہتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا کام جو ہم اللہ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. اور اینڈ میں 2 چیزیں پہ ختم کروں کہ مجھے 5 منٹ کہا تھا, وہ یہ ہے کہ میں ڈاکٹر بھی ہوں, فزیشین بھی ہوں, اور مجھے ڈاکٹر زیبا بہت سے لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کا سینس آف ہیومر بہت اچھا ہے. سینس آف ہیومر ہونا بھی چاہیے کہ مریض ایک آتا ہے, بیمار ہوتا ہے, پریشان ہوتا ہے, تو اس کے ساتھ تھوڑا سینس آف ہیومر بھی ہو جائے تو بہت اچھی بات ہوتی ہے. جیسا آپ نے شروع میں دیکھا میگا ریلیف کیمپس میں میڈیسن دی جاتی ہے, لیبارٹری ہے, انویسٹیگیشنز ہے, اور میں اس کا قائل ہوں کہ جو میں کہتا ہوں ہمارے جو اسٹوڈنٹ کو جب میں لیکچر دیتا ہوں, لافٹر از دی بیسٹ میڈیسن. اور ابھی اس کے لیے جو بھی ہمارے 15 منٹ کے بعد جو ہمارے آئیں گے انور مقصود صاحب, وہ آپ کو اس میں اور کریں گے. دوسرا ایک میں پروگرام دیکھتا ہوں, ابھی مجھے خیال آیا بیٹھے بیٹھے, آپ سب دیکھتے بھی ہوں گے ذاکر نائک کا, اس میں ایک پروگرام آتا ہے بیٹر ہاف بیٹر ہاف. تو اللہ کرے بیٹر ہاف کبھی نہ رہے. اس لیے میری وائف وہاں بیٹھی ہیں, بہت ناراض ہیں میرے سے کہ آپ گھر میں وقت نہیں دیتے, آپ گھر وہیں لے لیں مرشد ہسپتال میں. تو میں نے ایک تیسرا لگا دیا ہے, بیٹر ہاف رہوں گا, بیٹر ہاف نہیں رہوں گا, مگر تیسرا میں نے ہاف بنا لیا بٹر ہاف. بٹر ایک کرتے رہتا ہوں, میں کرتا ہوں کہ وہ میرے سے ناراض نہ رہے, تو بٹر میں روزانہ کچھ نہ کچھ لگاتا رہتا ہوں. اس پہ میں ختم کرتا ہوں. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. Thank you so much, sir, for a wonderful introduction. I'll now be showing you some videos, and you'll be seeing the Murshid Hospital and PWA at a glance.
शुरू में 30 साल पहले हुआ सिर्फ 4 डिपार्टमेंट्स को ट्रीटमेंट देता था, मेडिसिन, सर्जरी, औरतों की बीमारी और बच्चों की। ओवर द इयर्स हम लोग हमने इसको फुल फ्लेज फैसिलिटी कर दी है। अब हमारे पास हर महकमे में मरीजों का इलाज होता है, स्किन का भी इलाज होता है और न्यूरो सर्जरी, दिमाग की बीमारियाँ, प्लास्टिक सर्जरी, और हमारे पास फुल फ्लेज लेबोरेटरी है, अल्ट्रासाउंड हमारे पास है, हमने CT स्कैन भी इसको यहाँ कर दिया है। हमारे पास सारे लेटेस्ट इजाद मशीनें ICU, CCU सेटअप के लिए है। तो इन अ वे हम अभी टर्शरी केयर हॉस्पिटल के कैटेगरी में आ गए हैं। हमारा हॉस्पिटल रिकॉग्नाइज्ड है पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल से, और जैसे मैंने कहा हमारे पास फुल फ्लेज इमरजेंसी डिपार्टमेंट है। हमने कोविड पेशेंट्स को भी बहुत ज़्यादा ट्रीट किया है। हम फ्लड विक्टिम्स को फ्री ट्रीटमेंट देते रहे हैं। हमने मैनी कैंप्स, फ्लड रिलीफ कैंप किए हैं गरीबों के लिए। और अभी जो लेटेस्ट स्कीम आई है गवर्नमेंट की तरफ से सेहत कार्ड का, उसमें मैं बड़े खुशी से कहूँगा कि हज़ारों मरीजों का इलाज यहाँ हो रहा है, मुफ्त हो रहा है, हर किस्म की उनको फैसिलिटी दी जा रही है। अब ऐसा मौका आ गया है कि हमें बहुत ही कभी कभी मरीज को बाहर रेफर करना पड़ता है। हम अभी बॉर्डर पर खड़े हुए हैं बलूचिस्तान, एक पेशेंट कराची का होता है, दूसरे बेड पर आज़ाद कश्मीर का, तो तीसरे बेड पर बलूचिस्तान में। ये डायमेंशन आपको रिलेटिवली वहाँ नहीं मिलेगा। जैसे आज कैंप हमने बेला में किया, चंद दिन पहले हमारा कैंप दादू में था, एक एक पेशेंट पर हमारा फोकस होता है। तो मेरी तो एक रिक्वेस्ट है किसी के लिए कि वो आए, मुझे देखें भी, विजिट भी करें, सो दैट उनको खुद एक तसल्ली होगी, दिली इत्मीनान होगा कि यार वाकई जो फलाही काम है वो किस तरह से बेस्ट स्टैंडर्ड्स पर किया जा रहा है। मतलब कोई स्टैंडर्ड्स को क्वालिटी पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, इन शॉर्ट गोल्ड स्टैंडर्ड्स। बिल्कुल बिल्कुल। तो फलाही मामला में वो आए, विजिट भी करें और हमारी हेल्प भी करें, बिकॉज फलाही दारा विदाउट द हेल्प ऑफ फिलैंथ्रोपी पॉसिबिलिटी नहीं। तो वी नीड टू एड ऑन द फिलैंथ्रोपिस्ट इंशाल्लाह। मैं KP से बिलोंग करता हूँ। यहाँ पे वेकेशन 3 मई में आया था, तो राइट पाँव के फीमर में मेरा फ्रैक्चर हुआ था जिसमें रॉड डले थे, और अभी जो है ना यहाँ पे उसका क्रिटिकल कंडीशन थी, थोड़ा पेन था, तो मैं यहाँ पे रिमूवल के लिए आया था। तो यहाँ पे माशाल्लाह इन्होंने ऑपरेट किए, विद इन 1 डेज इन्होंने एक दिन मुझे एडमिट किया, सेकंड दिन उन्होंने मुझे ऑपरेट कर दिया। और इसके साथ जो है ना यहाँ पे पूरी स्टाफ काफ़ी कोऑपरेटिव है, और यहाँ पे क्लीननेस वगैरह की वजह से भी काफ़ी बेहतर है, और सारी चीज़ें बहुत एकवर्ड हैं। तो मैं प्रेफर करूँगा कि यहाँ पे लोग जिनको भी अगर नहीं पता तो वो सेहत कार्ड के हवाले से यहाँ पे आएँ और यहाँ पे इस चीज़ का फ़ायदा उठाएँ। हम लोग ये बल्दिया में रहते हैं, ये मेरा सांस है और गांव से है। इसका इलाज पहले बहुत करवाया था, लेकिन यह मोशर अस्पताल में इसका शुगर है, इसका इलाज हो चुका है, अभी बिल्कुल सेट है। ये मोशर हॉस्पिटल के लिए जो यहाँ ले गए, हमारा कोई खर्चा नहीं हुआ, कोई मुश्किल नहीं है, और डॉक्टर भी ख्याल करते हैं इस मोशर अस्पताल में, और कंपाउंडर भी ख्याल करते हैं, सब कुछ ख्याल करते हैं मरीज का, कोई टेंशन यहाँ पर किसी को नहीं होता है। ये अंशिदा, हमारा अंशिदा इसके अंदर है, इसको ऑपरेशन एक कामयाब हो गया, दूसरे को ऑपरेशन होगा। अंशिदा अस्पताल में ऑपरेशन में डॉक्टर विकास इसको ऑपरेशन फ्री इसको इधर नहीं लगे, दवाई फ्री नहीं दे रहे। मेरा नाम तरकीब दाद है और मैं इस वक्त मोर्शेद हॉस्पिटल में हूँ। ये मेरी बेटी है, हम यहाँ पे पैदा हुए, यहाँ की सहूलत बहुत अच्छी है, और फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे आया था। सेहत सहूलत कार्ड पे मेरी बेटी हुई डॉक्टर फलकनाथ से, और माशाल्लाह से सहूलत सब ठीक है, और यहाँ के हॉस्पिटल वाले के स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं और डॉक्टर भी बहुत अच्छे हैं। बंदे एहतियात टाउन के रिहायशी हम। तो मेरे दादाजी है, उनको चेस्ट का मसला था और काफ़ी बीमार थे। मैं
इनको यहाँ मुर्शिद हॉस्पिटल लेकर आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इनका बहुत अच्छा इलाज हुआ है यहाँ पर, और स्टाफ भी बहुत ही खिदमतगार और अच्छी तरीके से इन्होंने हमारे को यहाँ पे खिदमत की है। और डॉक्टर साहिबान भी जो है उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इखलाक के साथ हमारे साथ पेश आए, और अल्हम्दुलिल्लाह भी ठीक है, इलाज भी हुआ इनका बहुत अच्छे तरीके से, दवाइयाँ भी दी हैं हमें, और अमला भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है। महनीन नाम था हमारे पेशेंट का, बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क केस था। पहले उनके 2 सिजेरियन हुए हुए थे, और इस दफ़ा उनका जो प्लेसेंटा था, जिसे हम आम जुबान में आवनार कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा बच्चेदानी से ना सिर्फ बल्कि मसाने से भी चिपकी हुई थी। बहुत ज़्यादा हाई रिस्क केस था। ऐसे केसेस में उमूमन मरीज़ा की जान चली जाती है। 70% चांस होते हैं पेशेंट्स की डेथ होने के। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास को पेशेंट सेहत कार्ड पर मैनेज हुई, उन्होंने अच्छे खासे ब्लड प्रोडक्ट्स अरेंज किए, हमारे पास लेबॉर्ट्री की सहूलत थी। कुछ तो उन्होंने किए, हमने पर्सनल लेवल पे भी हमारी लेबॉर्ट्री से पर्सनल लेवल पे हमने प्रॉमिस बेसिस पे भी उनके लिए ब्लड्स लिए। उसके अलावा उनकी हिस्टेक्टमी हुई, माशाल्लाह वो पेशेंट फिर आईसीयू गई, आईसीयू से रिकवर हुई, रिकवर होके घर गई, और अभी भी वो पेशेंट मेरे पास आती हैं फॉलोअप के लिए, माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। watching, and I really feel very proud myself to be part of Murshid Hospital. Thank you, Dr. Kashif Mahmood, for giving me this honor and opportunity and a platform where we can actually go out, reach out to people and help them.
So now our guest introduction will be by Miss Gulrukh Hassan. She is a group head of corporate communications. Miss Gulrukh Hassan. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गुलरुख हसन है और मैं जाफर ग्रुप में हूँ पिछले 22 साल से। मुर्शिद हॉस्पिटल से भी मेरा काफ़ी करीबी ताल्लुक़ रहा है, ऑल्दो मैं इतना नहीं टाइम दे पाती, बट इट्स अ फिनोमिनल इंस्टीट्यूशन। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर जाएं और देखें कि किस किस्म का काम वहाँ हो रहा है। मुझे सबसे मुश्किल काम आज दिया गया है इंट्रोड्यूस करने का अनवर मकसूद साहब को, जिनका नाम ही उनकी पहचान है। मैं उनके बारे में क्या कह सकती हूँ, हिलाल इम्तियाज़ उन्हें मिला है, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस उन्हें मिला है। जहाँ भी उर्दू बोलने और समझने वाले लोग रहते हैं, अनवर मकसूद साहब को सब जानते हैं। 1970 आई थिंक लेट 70s या अर्ली 80s से इन्होंने प्लेज लिखे, सेटायर उनका दुनिया में मशहूर है, कॉमेडी शोज़। कौन सी ऐसी एरिया है जो अनवर अंकल ने नहीं किया? मैं अंकल उन्हें इसलिए कहती हूँ कि मेरे वालिद के बहुत पुराने दोस्त हैं। तो मैं आप लोगों से एक बिग हैंड फॉर मिस्टर अनवर मकसूद एंड 1 hour of pure pleasure. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम काशिफ महमूद साहब, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, 66 बरस से मेरा ताल्लुक़ टेलीविज़न से है। इन 66 बरसों में मेरे पास ख़वातीन के इतने फ़ोन नहीं आए जितने शहला के फ़ोन आए कि ये प्रोग्राम करना है। मगर फिर कोविड आ गया, कहने की कोविड के बाद करेंगे। मैंने कहा जब तक पता नहीं मैं और आप रहें या ना रहें, कोविड के दौरान ही करने हैं। फिर कहने की अब ये डेट है, कहने की अनवर साहब अब तो सैलाब आ गया। तो मैंने कहा कि इतना अच्छा प्रोग्राम है, कोई डेट रख लें, कोई चीज़ आए जाए, हम ये प्रोग्राम कर लेंगे। मुझसे कहने लगी अनवर साहब फीस क्या है आपकी? मैंने कहा शैला ये बताते हुए मुझे बड़ी शर्म आती है, मेरा कोई मैनेजर नहीं है, मैं बहुत पैसे लेता हूँ, आपसे मैं 5 लाख ले लूँ। कहने की थैंक यू, कहने चेक दे दूँ? मैंने कहा अभी नहीं। मैं जब दाखिल हो रहा था यहाँ तो बाहर एक साहब खड़े हुए थे, मैं नहीं जानता हूँ। मुझसे कहने लगे अनवर साहब आपसे एक काम है, मेरी बेटी की शादी है और फर्नीचर चाहिए। तो मैंने कहा कि क्या मैं क्या कर सकता हूँ? कहने कुछ भी। तो मैंने कहा मैं 1 लाख आपको दे देता हूँ और जो 4 लाख हैं ये मैं मुर्शद को वापस कर। कहने को तो मैं बहुत पैसे कह सकता था, मगर ये 4 लाख मेरी तरफ से काशिफ साहब के लिए और बाकी 1 लाख मैंने उनसे वादा किया है, वो इंतजार कर रहे हैं मुझे जाते वक्त। हम जिस दौर से गुजर रहे हैं अच्छा नहीं है। अभी मैं कल अखबार में खबर पढ़ रहा था कि जेल के एक क्लर्क को, जो नौजवान था, उसको 1350 रुपये रिश्वत लेने पे गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पूरी खबर अखबार में और आ नहीं सकती। इन हालात में इस ज़माने में एक आदमी अगर 1350 रुपये रिश्वत ले रहा है, किसी मजबूरी के तहत ले रहा है, उसको गिरफ्तार कर दिया गया। और यहाँ जो लोग अरबों रुपए लेके गायब हो गए, नज़र नहीं आते, उनके बारे में कुछ कहा नहीं जाता। क्या कह सकते हैं? और जो काम आप लोग कर रहे हैं, ये काम आप हुकूमत का काम है। जब से पाकिस्तान खुला है, खुला है कह लो, जब से पाकिस्तान वजूद में आया है,
تو ہر سال کا بجٹ جو ہے اس میں سب سے کم پیسے صحت اور تعلیم پہ رکھے گئے، اور یہ سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے۔ نہ ان کو لوگوں کی صحت کا خیال ہے، نہ ان کو تعلیم کا خیال ہے۔ تعلیم یہ دلوانا نہیں چاہتے غریب لوگوں کو، سندھ کے، بلوچستان کے، پنجاب کے، سرحد کے، کہ وہ اگر بچے پڑھ گئے تو پھر ان کو ووٹ نہیں دیں گے، تو ان کو تعلیم سے دور۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہر سال ہم انہی چہروں کو اسمبلی میں دیکھتے ہیں، اور انشاءاللہ دیکھتے ہی رہیں گے، کیونکہ خاندان بہت بڑے بڑے ہیں، اتنے بڑے بڑے خاندان ہیں ان کے کہ یہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیں گے۔ اب جو الیکشن ہوئے کراچی میں بلدیاتی، اس میں ایک جگہ ہے جہاں 630 ووٹرز ہیں، 4 دن تک ان کا رزلٹ نہیں آیا۔ 630 ٹوٹل ووٹرز ہیں۔ میں اس علاقے میں گیا، میں نے پوچھا بھائی رزلٹ کیوں نہیں آ رہا ہے؟ کہہ رہے ہیں یہ کم لوگ آئے ہیں۔ میں نے کہا آپ کیا بات کر رہے ہیں، ٹوٹل 630 ہیں، اگر کم آئے تو 500 آئے ہوں گے تو ان کا نتیجہ دے دیں۔ کہہ رہے ہیں ابھی اوپر سے آرڈر نہیں ہے۔ یہ حالت ہے، تو اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اب دعا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ بڑے سیلاب آئیں، بڑے زلزلے آئیں، کیونکہ انہی کی وجہ سے ڈالر آئے ہیں، اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ہر ملک نے منع کر دیا ہے کہ ہم پیسے نہیں دیں گے۔ جب یہ حالت ہو جائے، آٹا جو ہے لاہور میں پرسوں لاہور میں تھا، روٹی 16 روپے کی، نان 35 روپے کا لاہور میں۔ آپ کراچی میں سوچیں، بلوچستان میں سوچیں کیا حال ہوگا۔ مگر ہم سب چپ ہیں، کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ اپنی بیگم کو بٹر لگا رہے ہیں، وہ ڈاکٹر افورڈ کر سکتے ہیں مکھن، غریب آدمی مکھن کے افورڈ۔ میرے نام میں کتنے دنوں سے لکھ رہا ہوں، اور ہر دفعہ مشکل میں آ جاتا ہوں میں۔ اس دفعہ بھی اردو کانفرنس تھی، اس میں نے کچھ کہا، مگر میں نے پہلے کہہ دیا کہ حالات بدل گئے ہیں۔ میری عمر 83 برس ہے، ان 83 برسوں میں میں نے اپنی مرضی سے اپنے کپڑے اتارے ہیں۔ کوئی غلط بات کہہ کے پنجاب پولیس سے اپنے کپڑے اتروانا نہیں چاہتا، مگر مجبوراً مجھے کہنا پڑا۔ ہمارے فوج کے نئے سربراہ ہیں عاصم منیر صاحب، تو انہوں نے عہدہ سنبھال لیا تو ان کی بڑی فلمیں ان کے پڑوسیوں کی جا رہتے تھے، سب تعریف کر رہے ہیں کہ بہت نیک، ایماندار، نمازی، پرہیزگار آدمی ہے۔ اور ہمارے ساتھ تو یہ بچپن میں گلی ڈنڈا کھیلتے تھے، مگر اب کیا کریں، گلی ہمارے ہاتھ میں رہے گی، ڈنڈا ان کے ہاتھ میں آئے گا۔ مگر حافظ قرآن ہے، میری دادی بھی حافظ قرآن تھی، مگر ان کا کسی ٹی وی پہ نہیں آیا کہ امیر مقصود کی دادی حافظ قرآن ہے۔ تو یہ آنا نہیں چاہیے ٹی وی پر۔ بہت لوگ ہیں، 23 کروڑ کی آبادی میں 7-8 کروڑ لوگ ہوں گے جو حافظ قرآن ہیں۔ اچھی بات ہے، بہت نیک ہے، سب کچھ ہے، مگر فوج بہت ہے۔ اس پہ میرے پر اعتراض آیا کہ آپ نے کیوں کہا کہ پاکستان کی آبادی جو ہے وہ 60% غریب ہیں، 40% فوج ہے۔ امیروں کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں، یہ سچ ہے، مگر ہم کیا کریں، یہ واحد ملک ہے، دوسرے ممالک میں
آنے والا دن جانے والے سے اچھا ہوتا ہے. واحد ملک ہے پاکستان جس میں ہر آنے والا دن جانے والے دن سے برا آ رہا ہے. ہمارا کیا قصور ہے؟ آپ سب کا کیا قصور ہے؟ آپ لوگ بہت اچھے ہیں، نیک ہیں، مگر قسمت خراب ہے ہم سب کی. قائد اعظم کے بعد ایک سربراہ بھی ہم کو اچھا مل جاتا تو آج یہ حالات نہیں ہوتے. ہمیں کوئی سربراہ اچھے نہیں ملا. مجبوری ہے، کیا کر سکتے ہیں. میں اکثر میری خط و کتابت غالب سے بھی ابھی بھی ہے، اقبال سے ہے، جناح سے ہے. وہ لوگ میرے گھر بھی آتے ہیں اکثر. ایک کمرہ ہے میرا جہاں میری کتابیں رکھی ہوئی ہیں، 2 کرسیاں ہیں، وہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں. تو اقبال کی برسی کا دن تھا 21 اپریل. تو پاکستان ٹیلی ویژن نے اقبال کے پروگراموں کی تفصیل ٹی وی کی اسکرین پر آئی تو میں نے فوراً وہ ساری تفصیل علامہ کو بھیج دی. علامہ کا جواب آیا، انور میاں تمہارا خط ملا، اپنی برسی کے پروگراموں کی تفصیل سن کر دکھ ہوا. پاکستان ٹیلی ویژن سے کہو کہ بڑے لوگوں کی برسی نہ منایا کریں، وہ نہیں مرتے. بڑے لوگوں کی صرف پیدائش کریں. جو کچھ میں نے تم لوگوں کے لیے کیا اس کا صلہ نہیں چاہا. چھوٹے بچوں کی زبانی مجھے لب پہ آتی ہے دعا سن کر، زندگی کی ہر خواہش وصول ہو جاتی. اب تم لوگوں نے کیا کیا؟ ایک تو مجھے خواب دیکھنا نہیں چاہیے تھا. میں تو جاگتا رہتا تھا. اس دن نیند کیوں آئی میں بتا نہیں سکتا. اور جب میں نے خواب دیکھ لیا تھا تو اس خواب کا قائد سے ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا. وہ اس کی تعبیر میں لگ گئے کہ اس کو تو پورا کرنا ہے. 71 میں آدھا پاکستان رہ گیا. انور مقصود یہ آدھا پاکستان بھی بہت ہے. غور کرو، دریا، پہاڑ، صحرا، پھل پھول، سمندر، 4 موسم، نہریں، کیا نہیں ہے تمہارے پاس. تم اگر سورہ رحمان پڑھو تو یہی سورہ رحمان ہے جو تمہاری سرزمین ہے. میرے دوست میرے پاس آئے، کہنے کہ علامہ ہم تو تمہیں بہت بڑا شاعر سمجھتے تھے مگر تم تو خالی شاعر مشرق نکلے. میں نے کہا میں کیا کہہ سکتا ہوں، یہ خطاب مجھے میرے چاہنے والوں نے دیا ہے. پھر وہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے اب تم سب کانٹیننٹ کے شاعر ہو. میں نے کہا میں کچھ نہیں کہوں گا تم سے. یہ بھی جو لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں انہوں نے کہا ہے مجھ سے. 1947 14 اگست کو یہ لوگ میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ علامہ اب تم صرف ایک ملک کے شاعر ہو. میں نے پہلی مرتبہ ان سے کہا کہ بیٹھو. کسی بھی شاعر کے لیے اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک سرزمین اس کے نام سے پہچانی جائے، ایک ملک اس کے نام سے. میں نے پاکستان کی مٹی کی خوشبو اس مٹی میں سونگھی تھی جس میں طرابلس کے شہیدوں کا لہو ملا ہوا تھا. میں نے پاکستان کی سرزمین کی جھلک اس دعا میں دیکھی تھی جو میں نے قرطبہ میں بیٹھ کے مانگی تھی. مگر تم بختوں نے کیا کیا، 1971 میں مجھے صرف مغربی پاکستان کا شاعر بنا دیا. جس تیزی سے تم مجھ کو اور میری شاعری کو کم کر رہے ہو
मैं उस दिन से डर रहा हूँ जब लाहौर टेलीविज़न से ये अनाउंसमेंट हो कि अब फरीदा खानम से इकबाल सियालकोटी का कलाम सीखे। क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ ऐसा? मैंने सुना है कि तुम्हारी पहुँच सरबराहों तक है। इस दफ़ा इस्लामाबाद जाना तो मेरी तरफ से अपने सरबराहों से कह देना कि खुदारा जितनी ज़मीन बची हुई है उसको प्लॉट समझे, ज़मीन नहीं, क्योंकि तुम्हारे सरबराह प्लॉट की तो हिफाजत कर सकते हैं, ज़मीन की नहीं कर सकते। तुम्हारा इस तरह के बहुत ही ख़त है मेरे पास। अगर चाहूँ तो किताब छप सकती है। 66 बरस से लिख रहा हूँ, मेरी कोई किताब नहीं है, मैंने नहीं लिखी। वजह यह है कि मेरी एक लाइब्रेरी है, उसमें 3 किताबें ऊपर 4 रखी हुई ऊपर। एक कुरान शरीफ है, कुल्लियात मीर है, कुल्लियात गालिब है, कुल्लियात इक़बाल। उन 4 किताबों के बाद मेरी हिम्मत नहीं हो रही है किताब लिखने की कि मैं किताब लिख के क्या करूँ। वो 4 किताबें मेरे लिए काफ़ी। पतरस बुखारी का नाम आपने सुना होगा। उनकी मज़ाक पढ़ के मैंने मज़ाक लिखना शुरू किया। पतरस का ख़त आया, अनवर तुम्हारा ख़त दरवाजे पर पड़ा हुआ था, मेरी नज़र नहीं पड़ी, इस वजह से मैंने उठाया नहीं। जुमे की नमाज़ पढ़ के मैं जब वापस आया तो मैंने ख़त उठाया। यहाँ जुमे की नमाज़ पढ़ना लाजमी है। अगर जुमे की नमाज़ ना पढ़ो तो नाश्ते में सिर्फ खजूर की गुठलियाँ मिलती हैं। इस दफ़ा जुमे की नमाज में एक वाक़या हुआ जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, तुम चाहो तो लोगों को सुना देना। मैं और इकबाल एक सफ़ में खड़े हुए थे। सामने वाली सफ़ में महमूद गज़नवी और अयाज थे। महमूद गज़नवी ने अयाज से कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरे साथ एक सफ़ में खड़े होने की, तुम पीछे जाओ। इकबाल ने सुन लिया। इकबाल महमूद गज़नवी के पास गए, आप ऐसा नहीं कर सकते, मैंने तो शायरी में कह दिया है अपनी कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा रहा। तो महमूद ने इकबाल से कहा कि तुम्हें कोई काफिया नहीं मिला। बंदा नवाज के बाद तो तुमने अयाज को मेरे साथ बिठा दिया। इकबाल को ये बात पसंद नहीं आई और वो अयाज को लेकर दूसरी मस्जिद में चले गए। अब ये जो है बातें, अब जॉन का ये है कि जॉन इस वक्त हिंदुस्तान में, इंग्लिस्तान में, अमेरिका में, जर्मनी में सबसे पॉपुलर शायर है। वो अपनी शायरी की वजह से नहीं, ये जो सोशल अकाउंट खुल गए ना, ये जो इंस्टाग्राम वगैरह, उसने उनको बहुत पॉपुलर कर दिया। लंबे बाल यहाँ बिखरे हुए, एक कुर्ता बटन नीचे का ऊपर लगा है, ऊपर का नीचे लगा है, आस्तीने बालों को छेड़ रहे हैं, रॉक स्टार लगते हैं जैसे बिग जैगर था, रोलिंग स्टोन्स का। जब भी मैं जाता हूँ, हिंदुस्तान भी गया अभी मैं, उनका सिर्फ आप जालिब पे बात करें या जॉन पे, फैज़ पे, फराज पे, मुनीर पे ना करें। तो मैं और जॉन रेख्ता एक कॉन्फ्रेंस थी उर्दू की, बहुत पहले गए थे जब दिल्ली में शराब पर पाबंदी थी। जिस होटल में हम गए, गैर मुल्कियों को शराब की आदत थी, मगर एक फॉर्म भरना पड़ता था। तो मैंने कहा भाई 2 फॉर्म दे दें। अब मैं फॉर्म भरने लगा तो जॉन बैठे हुए थे, वो बैठ के फॉर्म भर रहे, फिर आए और उस लड़की से कहने लगे कि मेरी ज़बान को माफ़ रखियो, ये किस हरामजादे ने फॉर्म छापा है। तो उसने कहा क्या बात है, क्यों नाराज़ है। फॉर्म पे लिखा था शराबी का नाम, शराबी के बाप का नाम, शराबी कब से शराब पीता है, शराबी दिल्ली में कितने दिन क़याम करेगा, शराबी दिल्ली में किस किस को जानता है, शराबी की दस्तखत, शराबी का पासपोर्ट नंबर।
जॉन ने कहा कि मेरा बड़ा ख़ानदान शरीफ ख़ानदान है, मेरे दादा नाना बाप 5 वक्त के नमाजी हैं, और ये हरामज़ादा लिखता है कि बाप का नाम शराबी के बाप का नाम, मैं तो नहीं भरूँगा फॉर्म। फिर मैंने उनकी तरफ से फॉर्म भरा, उनका वो लिख के रख दिया। हर दफ़ा क्रिकेट का बहुत शौक था, कोई भी मैच हो मेरे आते थे, और मेरी अपनी लाइब्रेरी में मेरी अपनी बार है, वहाँ के बैठ जाते थे। एक दिन आए, कहने लगे कि हर दफ़ा खाली हाथ आना अच्छा नहीं लगता, तो अनवर इस दफ़ा जेब में हाथ डाले और 2 गिलास निकाले और मेज पे रखे, कह रहे मैं गिलास ले आया हूँ तो बोतल निकालो। मैंने कहा अच्छा ठीक है ठीक है। जॉन के किस्से इतने हैं, इतने किस्से हैं जॉन के। उनके बड़े भाई रही सब लोग भी एक घर में रहते थे सोल्जर बाज़ार में, वो घर कोई 2-3 करोड़ का बिक गया, 4 करोड़, और सब भाइयों को पैसे मिलना थे, रही साल इनको पैसे नहीं दे रहे थे। एक दिन रात में 2 बजे आए, कराची के हालात ठीक नहीं थे, घंटी बजी तो मेरी बेगम ने कहा कि अकबर बाहर मत जाना, हालात ठीक नहीं है। मैंने कहा नहीं बुरी बात है। मैंने कहा भाई कौन? बोले अन्नू जानी मैं हूँ। मैंने कहा वो जॉन भाई आए हैं। मैं गया बाहर तो टैक्सी से उतरे, टैक्सी में आए थे। मैंने कहा जॉन भाई 2:30 बजे रात की खैरियत? कह रहे अन्नू मैं रेंजर बन के रही भैया को फ़ोन करूँगा, पैसे नहीं दे रहे थे। मैंने कहा 2:30 बजे रात के आप रेंजर बन के रईस भाई को फ़ोन करेंगे? मैंने और कोई तरीक़ा ही नहीं है। मैंने कहा आइए, मेरे पास काला वाला फ़ोन था जिसमें नंबर घुमाओ तो बड़ा वाला, अब मैंने उनका 77 16,000 का नंबर था, मैंने कहा ये नंबर है, मैंने मिला दिया। अब बेल बजी, भैया मैं रेंजर बोल रहा हूँ। मैंने फ़ोन दबा दिया। मैंने कहा ये क्या किया आपने? पहले कहा भैया मैं रेंजर बोल रहा हूँ, बोले तहजीब मार दी। भैया ने उठाया फ़ोन तो मुँह से निकल नहीं था भैया। मैंने कहा कोई बात नहीं, समझ जाए। हैदराबाद जा रहे थे मेरे साथ, मैं उबैदुल्लाह अलीम, जमाल एहसानी, साबिर ज़फ़र, सलीम कौसर, इफ्तिखार आरिफ, हम सब एक वैन में जा रहे हैं। जॉन भाई ड्राइवर के साथ आगे बैठे हुए। अब हम लोग यहाँ से निकले हैदराबाद के लिए, हर 10 मिनट बाद ड्राइवर से कहे गाड़ी रोको गाड़ी रोको, और कमरबंद खोलते हुए सड़क के ऊपर जाके पेशाब करके आते थे, फिर आके बैठ जाते थे। फिर वैन चली आगे, फिर 15 मिनट बाद रोकियो 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 रोकियो। अब ये सिलसिला हैदराबाद तक जारी रहा, हम सब बैठे हुए। आखिर में आके सांस वास ली, ड्राइवर से पूछते हैं भैया हैदराबाद कितनी दूर है? उसने कहा 2 पेशाब और। अब ये जो ज़माना गुजरा है, ज़िया-उल-हक साहब की जो बेटी थी स्पेशल है, तो उनसे मेरी बहुत दोस्ती थी। वो सारे मेरे प्रोग्राम 50-50, शोशाह, आमिर टेढ़ा, उसको ज़बानी याद थे। शायद उसी की वजह से मुझे ज़िया साहब ने गिरफ्तार नहीं किया, वरना मुझे कब तक कर चुका। इमरान खान ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था 86 में कि मैं क्रिकेट से रिटायर हो रहा हूँ। इनके दोनों साहबजादे मेरे पास आए, एजाजुल हक और अनवारुल हक। अनवारुल हक डॉक्टर है कि हम अब्बा जो हैं वो इमरान को ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं और मेज़बान आप होंगे। मैंने कहा आपने अपने अब्बा से पूछा है? कह रहे कि क्या मतलब? मैंने कहा नहीं, सदर साहब ने कहा जी, उनकी ख्वाहिश है। मैं पहुँच गया इस्लामाबाद, एयरपोर्ट पे लोग लेने आए मुझे और मैं घर चला गया पिंडी में। तो कहने लगे मैं
10:30 बजे मुझे फ्रांस के सफ़ीर ने बुलाया है, तो आप 10:30 बजे मुझे फारिग कर दीजिएगा ताकि मैं वहाँ चला जाऊँ। लेकिन जी सर, जो भी आप कहें। अब कोई 20,000 आदमी बैठे हुए स्टेडियम में, बहुत ऊंचा स्टेज लगा हुआ है। मैं गया, मैंने कहा 1971 इस मुल्क के लिए अच्छा नहीं था, अफरा तफरी मची हुई थी, हमने क्या खोया क्या पाया किसी को एहसास नहीं था। 1971 में ही हमने एक नौजवान को भागते हुए देखा जिसको अपने गिरेबान के बटन भी बंद करना नहीं आते थे। वो इतना अच्छा भागा कि हम भूल गए हमने क्या खो दिया, क्योंकि हमने इमरान को पा लिया था। इमरान का करियर 1971 में, तो बड़ी तालियां हो गई मुझे। इमरान खान, मैंने कहा इतनी विकेट ली, इतना ये किया, इतने कैच मिस किए, इतनी मिस कैच की। उस पर इमरान थोड़ा सा खटका बना। मैंने कहा ये मैंने कहा आप जो इमरान को जो मेडल देने आ रहे हैं उनके रिकॉर्ड तो मुझे मालूम नहीं, उनका एक रिकॉर्ड मालूम है कि इन्होंने 11 जनरल्स को सुपरसीड किया है। ये वाहिद रिकॉर्ड है इनका। तशरीफ आते हैं मोहतरम ज़ियाउल साहब, वो आए स्टेज पे, बहुत ऊंचा स्टेज था, खैर मैं हाथ बनाया और आते ही इन्होंने इमरान के गाल पे प्यार किया, इधर और इधर। तो मैंने कहा ख़वातीन हज़रात, आज पहली मरतबा किसी मर्द ने इमरान को प्यार किया। तो मैं इधर देख के कहते क्या कहा आपने? मैंने कहा नहीं सर, आप अपना काम करें, मैं अपना काम कर रहा हूँ। वहाँ से टेंशन शुरू हो गई थी। बोलते गए उनके साथ यस्तुल हक साहब बैठे हुए थे, नेवी के हेड। मैंने कहा जय साहब, आपके साथ नेवी के चीफ बैठे हुए यस्तुल हक साहब, इन्होंने एक हफ्ता पहले मुझे बुलाया कि आपको डॉकयार्ड आना है और हमारी एक नेवल नाइट है, तो उसके लिए आप ऐड करें। मैंने कहा सर ये बड़ों का प्रोग्राम है, इसमें मैं नहीं आता। कहे क्यों आपने? मैंने कहा आपने कहा नेवल नाइट, कहे आपके स्पेलिंग गलत है, ये नेवी के हिसाब से कह रहा हूँ नेवल नाइट। तो मैंने कहा अच्छा मैं आ जाता। मैं गया, कभी गया नहीं था। तो उनके लेफ्टिनेंट हैं, एक दिन पहले मैं चला गया, उन्होंने सारे जहाज़ दिखाए मुझे, शाहजहाँ, अकबर, बाबर, औरंगज़ेब, सब मुग़ल बादशाहों के नाम। तो ज़िया साहब, मैंने बच्चे से पूछा कि बेटा आपने ये मुग़ल बादशाहों के नाम पे पाकिस्तानी जहाज़ का नाम क्यों रखा? कहने लगा अंकल आप बताएंगे नहीं किसी को? मैंने कहा नहीं। कहने लगा उन्हीं से ख़रीदे मैं। तो ज़िया साहब, इतने पुराने नेवी के जहाज़ आपने रखे हुए हैं, सारा पैसा आप आदमी को खर्च कर रहे हैं, नेवी को भी कोई काम दें। उनका काम सिर्फ कराची में मकान बनाना तो नहीं है। तो अब तो ज़मीन भी नहीं बची कराची में, उसके बाद क्या करेंगे ये लोग? अब टेंशन वहाँ से बिल्डअप। मैं आ गया, इस्लामाबाद होटल में ठहराया था मुझको। 4:30 बजे मेरे दरवाजे पे, तो मैंने कहा क्या खैरियत? मैंने देखा कि एजाज साहब और अनवर दोनों आए कि वाले साहब ने याद किया आपको। मेरे भाई इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी थे सिंध के, अहमद मकसूद थे। मैंने अहमद भाई को फ़ोन किया कि अहमद भाई रात के 3:30 बजे जनरल साहब बुला रहे होंगे। कहने कि तुमने कुछ कहा? नहीं, मैंने कहा नहीं मैंने कुछ नहीं कहा। बोले प्रोटोकॉल में यू हैव टू गो। अब मैं गाड़ी बैठा हुआ हूँ और चकलाला से होती हुई गाड़ी पिंडी घर गई। वायरलेस पे तमाम यहाँ पहुँचे, यहाँ पहुँचे, यहाँ पहुँचे। जैसी गाड़ी हुई बाहर आए, वही शेरवानी पहने हुई, हाथ में आइए। अब मैं अंदर गया तो सारे जनरल्स सब बैठे हुए लाइन से, कोई खड़ा नहीं हुआ मुझसे हाथ मिलाने के लिए। मैंने बैठे बैठे हाथ मिलाया सबसे। कहने बहुत नाराज़ हैं आपसे। मैं भी नाराज़ हूँ आपसे। मैंने आपसे कहा था कि 10:30 बजे मुझे फराज के सफ़ीर के यहाँ जाना है। आपकी बकवास मैं 1:30 बजे तक सुनता रहा। 3 घंटे बकवास सुनी आपकी, बैठा रहा।
बताइए, जवाब दें। और पिन ड्रॉप साइलेंस, सब चुप है। मैंने कहा सर आपको तो आदत है। लिखिए किस चीज़ की आदत? मैंने देर तक बैठने की। बोले क्या मतलब? मैंने कहा सर 90 दिन के लिए आए थे, 8 साल हो गए। अगर 1 घंटे के लिए आए, 3 घंटे बैठने में क्या प्रॉब्लम है? फिर सबसे कह लगे हिम्मत है किसी की ये जवाब देने की जो अनवर मकसूद ने दिया है। अनवर मकसूद अगर आज मेरी जगह कोई और सदर होता तो तुम नहीं होते, और तुम्हारी जगह कोई मेज़बान होता तो वो भी नहीं होता। मैंने कहा सर ऐसा करते हैं आप लोग रहें, मैं ही चला जाता। कह लगे नहीं, मैं चाहता हूँ कि हम लोग साथ रहें। मैं कहा सर बहुत मुश्किल है, इन बातों पे अगर आप बुरा मान रहे हैं, ज़रा से मजाक पर, तो इसमें कोई बात नहीं है। एक ब्रिगेडियर उठे, उन्होंने मेरे कुर्ते का मेरे गिरेबान पकड़ा और खींचा जोर से, मेरा बटन टूट गया। कह लगे हम आपको बुलाते हैं ऑफिशियल फंक्शंस में और आप बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं। मैंने कहा सर हाथ हटाएं, प्रॉब्लम ये है ब्रिगेडियर साहब, बॉर्डर क्रॉस करने की तनख्वाह आप लोग लेते हैं, जब आपसे नहीं होता तो मजबूरन मैं करता हूँ। कहने के जवाब थे, अब जवाब दें इनको। तो मैंने कहा कि नहीं सर, बस आप लोग रहे खुश, और मैं माफ़ी मांगता हूँ किसी बात पे अगर आपको बुरा लगा हो। तो बोले बस इतना है कि मैंने आपसे जब कह दिया था 10:30 बजे मुझे चले जाना चाहिए। मैंने कहा मैं फिर माफ़ी मांगता हूँ आपसे, चले। और मैं जा रहा हूँ कराची, APNS अवार्ड्स हैं अखबार वालों के, मैं चीफ गेस्ट हूँ और मैं चाहता हूँ आप उसके मेज़बान। मैंने कहा सर ऐसा हो नहीं सकता। बोले मैं आपको ऑर्डर दे रहा हूँ। सिद्दीक सालिक साहब बैठे हुए थे, वो हेड थे ISPR के। उन्होंने कहा कि अनवर साहब हो गया था कि आप ही होंगे। शेरेटन में अवार्ड्स APNS के, मलिहा लोधी, अर्दर शेर काउची, हमीद हारून, ये सब भरा हुआ है हॉल इंडिया से। मेरा रोस्टम जो है उन्होंने कोई 10 फीट पीछे लगाया और ये सब आगे बैठे हुए लाइन से। उस वाले में चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के नवाज शरीफ साहब। अब मैं आया, मैंने कहा ख्वातीन हज़रात आज मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि सदर साहब मेरे आगे हैं, पंजाब के वज़ीर आला मेरे सामने बैठे 10 फीट दूर, सिंध के वज़ीर आला भी आगे बैठे हैं, और मैंने ज़िंदगी में पीठ पीछे बुराई किसी की नहीं की। मैं जानता हूँ बुरहान साहब गुल्लो के अब्बा है, कहने के क्या हो गया, पागल हो गया तुम? मैंने कहा बुरहान भाई क्या हुआ? कह रहे नहीं सब शुरू करो तुम प्रोग्राम। मैंने कहा मैं नहीं करूँगा, आप मेरा रोस्टम बराबर लाए साथ। 10 फीट पीछे मैं खड़ा हूँ, मैं कैसे बात कर सकता हूँ? तो एक टेंशन, बुरहान ने कहा कि बुरहान साहब ने कहा क्या कोई बात नहीं, तो तुम शुरू करो ना बस। तो ज़िया साहब खड़े हुए, बोले भाई ले आए इनका बराबर लाए मेरे साथ। अब वो वायरिंग सारी हो चुकी थी, अब वो कारपेट खुला, वायरिंग निकली। फिर मैं इधर देख के खुश हैं आप? मैंने कहा जी सर मैं खुश हूँ। मैंने कहा शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो मेरे वतन को चला रहा है। अब मैं दावत दे रहा हूँ मोहतरम शाकिर कासमी साहब को कि वो आएँ। ये मुझसे बहुत नाराज़ है शाकिर कासमी, कह रहे थे अनवर मकसूद तुम 50-50 ख़त्म करते हो तुम्हें शोशा मिल जाता है, शोशा ख़त्म होता है तुम्हें आंगन टेढ़ा मिल जाता है, आंगन टेढ़ा मिलता है शो टाइम मिल जाता है, क्या चक्कर है तुम्हारा? मैंने कहा मेरा कोई चक्कर नहीं है, मैं स्क्रिप्ट लिखता हूँ और थोड़े से पैसे मिलते हैं वो ले आता हूँ। प्रॉब्लम आपका है, स्क्रिप्ट किसी और का लिखा हुआ है, पेमेंट आप ले रहे हैं। उस पर अध्यक्ष काउजी वगैरह खड़े हो गए और ज़िया साहब उससे बिल्कुल पागल हो गए थे। बोले बंद करें इसको, बकवास बंद करें, बंद करें तालियाँ। फिर मज़हब का मजाक उड़ा है। मैं कहा मज़हब का नहीं है मजाक, आप हर बात को सीरियस ले लेते। खैर टेंशन होती गई। ADC मेरे पास आए और कहने लगे कि आप चाहिएगा मत, आप ठहरे रहिए। मैं परेशान, बुरहान साहब आए तो बैठे रहो,
डिनर का अनाउंसमेंट कर देना, फिर तुम चले जाना। मैंने कहा आपकी मर्ज़ी पे मैं डिनर का अनाउंसमेंट करूँगा। तो कहने के ठीक है। मैंने कहा ख़वातीन और हज़रात, आपकी खिदमत में ज़ियाफ़त। उसके बाद जो मुझ पर बदली है, मैं क्या बताऊँ। मगर मैं आपसे एक बात कहूँ कि हम मेरे ख़ानदान में भी फ़ौज है, कई फ़ौजी हैं। मुझे फ़ौज की तरफ से हर सरबराह ने फ़ौज के अवार्ड दिया है मुझको। फ़ौज बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, मगर ज़्यादा है। अगर कम होती तो बहुत अच्छी होती। मगर दोस्ती इतनी है मेरी सबसे, हर आदमी से दोस्ती है मेरी। मैं अभी भी कहता हूँ लोग अच्छे हैं बहुत। आसिफ मुनीर साहब बहुत अच्छे अफसर हैं, सारी ज़िंदगी इनकी देखें, आउटस्टैंडिंग ऑफिसर, हर चीज़ आउटस्टैंडिंग। मगर जिस दिन रिटायर हो रहे थे उससे एक दिन पहले चले जाते हैं। तो अच्छा होता कि ज़िंदगी का कैरियर बिल्कुल साफ है, मगर हम फौज के बगैर रह नहीं सकते। अब ये है कि हालात जो है पाकिस्तान के, कर्जा जो है ना, कर्जों के साए में हम पलकर जवाब हुए हैं। आसान नहीं बैठाना नामो निशान हमारा। जब मांगने की आदत पड़ जाए ना तो फिर हाथ हमेशा फैला ही रहता है। हमें आदत हो गई है पैसे मांगने की। इस मुल्क में इतना टैलेंट है, इतना टैलेंट है कि अगर छोड़ दें, दुआ करें कि कर्जा ना मिले, तो आप देखिएगा हालात खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। सिर्फ हम कर्जे का इंतजार करें, हम कर्जे का इंतजार करते हैं, बहुत बुरी बात है। बाकी रही बातें तो मैं आपसे, मुझे अभी एक्सपो में, दुबई में एक्सपो 22 हुई तो मुझे बुलाया इकबाल डे पर। अब एक्सपो का पवेलियन पाकिस्तान का, वहाँ भरे हुए थे लोग, स्टेडियम बनाया हुआ है छोटा सा। तो इकबाल को मैंने ख़त लिखा कि मैं जा रहा हूँ एक्सपो में आपके बारे में बोलने के लिए। तो उनका जवाब आया, अनवर दुबई में तुम मेरे लिए क्या बोलोगे, और तुम मुझे कैसे ले जा रहे हो? ना मेरा कोविड टेस्ट, ना मेरे पास दुबई का वीज़ा, किस तरह तुम जाओगे मेरे लेके? और दुबई में मुझे पहचाने का कौन? तुम मेरी बात मानो, तुम्हारे इदारे के सरबराह का नाम है हाजी इकबाल, ARY के सरबराह है वो, तुम उन पे कर लो प्रोग्राम, इकबाल को रहने दो, क्योंकि हाजी इकबाल को दुबई वाले जानते भी हैं और वो बहुत अच्छे आदमी है, नेक आदमी है। इकबाल को कौन समझेगा दुबई में? अगर हाजी इकबाल ना माने तो तुम इकबाल मानो पे कर, क्योंकि वो भी नवंबर में पैदा हुई थी। और इकबाल मानो की गाई हुई गीत, गज़लें, नज़में तुम्हें दुबई के हर घर से मिल जाएंगी। इकबाल की कोई चीज़ तुम्हें दुबई के घर से नहीं मिलेगी। तुम ये कर लो। परसों भी यहाँ ऊपर फैज़ साहब के साथ मेरे पास आ गई, तो मैंने कहा कुछ सुनाओ, तो वो हम देखेंगे सुनाने लगी। तो फैज़ साहब ने रोक दिया कि ये मत सुनाओ, ये मैंने ज़मीन पर लिखी थी, जो न तुम देख सकी न मैं देख सका, हम ऊपर आ गए, तो यहाँ ये चीज़ें मत सुनाओ। अब रही बात दुबई एक्सपो की, तो मैं तुमसे इतना कहता हूँ कि ये फ्यूचर की नुमाइश है, ये आने वाले सालों की नुमाइश है, ये इंसान के मुस्तक़बिल की नुमाइश है। कम से कम पाकिस्तान पवेलियन पर मेरा एक ही शेर लिख देते हैं, उरूज आदम खाकी से अंजुम से में जाते हैं। या खाकी से मुराद मेरी फ़ौज नहीं है, उरूज आदम खाकी से अंजुम से में जाते हैं कि ये टूटा हुआ तारा वह कामिल न बन जाए। इंसान को अल्लाह ने कहाँ पहुँचा दिया, और ये शेर भी वहाँ लिखा हुआ नहीं। तुम्हारी मर्ज़ी, तुम जाना चाहते हो चले जाओ। शाहीन बंद हो गई है, वरना मैं शाहीन से चला जाता। और शाहीन भी दुबई इसलिए नहीं जा रही है
कि तुम लोगों ने शाहीन से चरस निकाल ली। और मेरे शाहीन से चरस निकल रही है दुबई में, तो तुमने तो शाहीन की पट्टी पलीद कर दी। मेरे शाहीन से मशहूर तो अब मुसरत शाहीन है, वो भी पहाड़ों में रहती है। और शर्म की बात है कि तुम डिफेंस में रहते हो और तुमने मुझे ख़त में लिखा है ख़याबान शाहीन। हम लोग मखसूस शाहीन ख़याबानों में नहीं रहते, तो ये सिर्फ फ़ौज वाले के लिख सकते हैं ख़याबान शाहीन। बस जीते रहो, ऊपर आने की जल्दी मत करना, जब तक रहो पाकिस्तान में रहो। मैं परसों जा रहा हूँ, ISPR ने बुलाया मुझे, सदर जनरल साहब से मुलाकात है मेरी। उनका एक प्रोग्राम है जो मुझे करना है, सरगोधा में है, तो मैं कर रहा हूँ। ये दोस्तियाँ, मेरे बहनोई, 2 बहनोई हैं, वो भी फ़ौज में थे, दोनों बहुत नेक, शरीफ, नमाजी, ईमानदार, मगर उसके बावजूद उनके भी 3-3 घर हैं। तो क्या करें? मुझसे शेख रशीद ने कहा कि अनवर साहब, इमरान और आदमी एक पेज पे है। मैं कसम खाता हूँ, इमरान और आदमी एक पेज पे है। मैंने कहा व्हाट अबाउट नेवी? तो कहने के क्या मतलब आपका? मैंने कहा नेवी कुछ करेगी सर। बोले नहीं, नेवी सबसे अच्छी है। ठीक है, मगर हालात ऐसी हैं, फौज भी क्या करे? सरहदों की हिफाजत करे, सूबों की हिफाजत करे। आपने मौका ही नहीं दिया फौज को अपना काम करने का। हम ही लोग बुलाते हैं फौज को, वरना वो नहीं आए। हालात इतने ख़राब हो जाते हैं कि और कोई तरीक़ा ही नहीं कि क्या कर सकते हैं। जब इस मुल्क में जनरल पंखे हैं, कर्नल चावल हैं, AC/DC प्लग्स हैं, और तो हम लोग बच नहीं सकते। मगर ये कि हमें सलाम करना चाहिए फौज को कि अपना काम करे, मुल्क की हिफाजत करे। बहुत अच्छी है फौज, बहुत अच्छी है, और ये नहीं हो तो हम पता नहीं कहाँ होते हैं। मगर मैं इस वजह से नहीं कह रहा हूँ ये सब कुछ कि मैं जा रहा हूँ परसों, ये बात दिल से कह। और रही इस हॉस्पिटल की बात, आप सब यहाँ मौजूद हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं अमीर आदमी नहीं हूँ, मैं लिखता हूँ, पैसे मिलते हैं, करता हूँ, पेंट करता हूँ। आप सब यहाँ इदारों के लोग बैठे हुए, तो जाते हुए मुर्शद की इनायत कबूल करें, खुद भी कुछ इनायत कर दें। आपकी इनायत कुछ भी हो, ये जो कुछ हमने देखा है, एक साफ सुथरा पुरसुकून अस्पताल जिसमें बलोची भी है, सिंधी भी है, गिलगित से भी लोग आए हुए हैं, और सबकी टांगें टूटी हुई हैं। ये हालात ऐसे हैं कि टांगें ठीक ही नहीं रह सकती। तो दुआ करें कि हालात भी सही हो जाए, टांगें सही रहें, लोग चलने फिरने की काबिल हो जाए, और सबकी मुरादें पूरी हों। सिंध में एक की मुराद पूरी नहीं होना चाहिए। सिंध सबसे अच्छा शहर है, सबसे अच्छा सूबा है, मोहब्बतों का सूबा है। यहाँ सरमस्त, शाह बिटाई, जुम्मन, यूसुफ, माई भागी, शेख अयाज, इन सब की बातें सुने, गाने सुने, मोहब्बतें भरी हुई हैं। तो इस सूबे को मिलना चाहिए। अब महाजिर लड़के ज़्यादा जा रहे हैं पाकिस्तान छोड़ के। मैंने पूछा क्यों जा रहे हो? कहते हम ऐसी जगह जाएंगे जहाँ कम से कम महाजिर बलदियाती इंतखाबात में खड़े तो हों। क्या कह सकते, खुश रहें आप लोग, पाकिस्तान ठीक रहे। 83 बरस की उम्र में मैं और क्या कह सकता हूँ। पाकिस्तान
Thank you so much, sir, and a little tribute to you. Here we have a special request by Ms. Noreen Khan. She's the head linguistics and language. She wants to pay a tribute to Sir Anwar Maqsood in the form of some poetry. Please, Ms. Noreen Khan, please come on the stage. शैला, ये रख लें, अगले प्रोग्राम में किसी को दीजिए, क्योंकि पिछले प्रोग्राम में भी यही मिला था। वैसे माजरत के साथ में एक बात बोलूं, मेरी कॉज पे तो आपने फसाना सुना दिए, फूल देने पे क्या करूं? अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, सिर्फ 2 मिनट हैं मेरे पास, लेकिन मैं अनवर मक़सूद साहब ने ये नहीं बता सकती सर, वरना सर जान की अमान पाऊँ। बहुत शुक्रिया, कोशिश की है, वरना हम क्या कह सकते हैं, हमारी जुर्रत और मुकाल कि आपके सामने कुछ कहें। बजिया से हमारा बड़ा अच्छा एक रिश्ता रहा, क्योंकि हमारे स्कूल में हमेशा वो आया करती थी। एन इवनिंग विद अनवर मक़सूद, अपनी ज़बान उर्दू, कौमी ज़बान उर्दू, अनवर मक़सूद आपसे तो है जवान उर्दू, इस मुल्क के हर सूबे की पहचान उर्दू, दुनिया में पाकिस्तानियों की आवाज़ उर्दू। आंगन टेढ़ा हो 50-50 या स्टूडियो ढाई, लूज टॉक में भी अनवर मक़सूद ने की है हमेशा खिंचाई। इनके तंज़ो मिज़ाह ने हर दौरे हुकूमत के कारनामों की तस्वीर बनाई है कि नहीं? सब छोड़ो, इन्होंने तो इस्टेब्लिशमेंट की भी की है धुलाई। तालियां तो कर दें भाई इस बात पे, वरना हिम्मत थी किसी में। डिप्टी नज़ीर अहमद के मिरतुल उरूस की याद अगर मेरा अहमद ने दिलाई, तो सितारा और मेहरुन्निसा ने भी की है सिन्फ़े नाजुक की भरपूर हौसला अफजाई। डिजिटल दौर में भी सिन्फ़े आहन रहा हुकूक़े निस्वां की शुनवाई। इस धरती माँ के मुसन्निफ़ों की अज़मत को बधाई हो बधाई। तालियां तो होनी चाहिए, क्या बात है। दक्कनी उर्दू हो, सर हैदराबाद दक्कन जनाब, हैदराबाद दक्कन, दक्कनी उर्दू हो, दक्कनी उर्दू, लखनवी उर्दू, बरेलवी उर्दू, और सर वो एक जॉन एरिया वाली बात रामपुरी उर्दू हो, कोई भी लबो लहजा पाकिस्तान की पहचान उर्दू। सलाम है अनवर मक़सूद को, सलाम है अनवर मक़सूद को, जिन्होंने रखी है कायम साख इसकी। लश्करी ज़बान में लश्करे इंडो पाक को क्या खूब लेकर चले, लश्करी ज़बान में लश्करे इंडो पाक को क्या खूब लेकर चले, बहुत चले बहुत चले। अब उठाओ बीड़ा मेरे दोस्तों कि ये शनाख्त ता क़यामत रहे। ज़ुबैदा आपा के टोटके, बजिया की नॉवल निगारी, ज़हरा निगाह की शायरी, सारा नकवी की कॉलम निगारी, सब अपनी जगह हीरे हैं कोई शक, सब अपनी जगह, मगर अनवर मक़सूद रहे सब पे भारी। बजा दी तालियां। और अब एक बिल्कुल गैर सियासी सेंटेंस आ रहा है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक जरदारी सब पे भारी। गैर सियासी है सर, मैंने पहले ही कहा। नहीं ठीक है, मगर मुझे लग रहा है कि आप शायरी के अलावा और काम बहुत अच्छे कर सकते हैं।
शुक्रिया नौरीन, थैंक यू। सब खुश रहें। और पाकिस्तान में कोई भी अच्छा काम बगैर खाए नहीं हो सकता, तो थोड़ी देर में आप लोग खाएंगे, तो खुश रहिए। जिस तरह का सलूक है मरीजों के साथ, और मैं नर्सों को सलाम पेश करता हूँ। अगर डॉक्टर बुरे हैं तो नर्सें हॉस्पिटल में नहीं रहती, जब नर्सें हॉस्पिटल में हैं इसका मतलब है डॉक्टर अच्छे हैं। तो नर्सें भी खुश हैं, इस अस्पताल की डॉक्टर भी खुश हैं, माहौल बहुत अच्छा है। और जितने लोगों ने बात की इस चार दीवारी की, सबने तारीफ की, तो खुदा करे ये इसी तरह चलता रहे। आमीन। Thank you very much, sir. बहुत बहुत शुक्रिया for a lovely evening with you. It was indeed our pleasure and it was wonderful. Thank you so much, sir. Now there will be an MOU will be signed between Murshid Hospital and Sinani Welfare Foundation. Murshid Hospital and Sinani Welfare Foundation will be signing this MOU, and inshallah we'll be receiving patients from Sinani Foundation, and inshallah we will be helping them out in all fields. Thank you, sir, and thank you, Sinani Welfare Foundation. Okay, so last but not the least, we are going to end this program with vote of thanks by Wing Commander Mohammad Tahsin Siddiqui, retired. He is the GM of fundraising, Murshid Hospital and Healthcare Center. Please, sir, come on the stage and render your vote of thanks. A lot from her. Ladies and gentlemen, it is really an honor for me to present this vote of thanks on behalf of CEO Murshid Hospital and Healthcare Center and the organizing committee of this wonderful evening with the living legend, Mr. Anwar Maqsood. I thank you all sitting under this roof for this noble cause. I thank you, the honorable patrons of this Murshid Hospital and Healthcare Center. I thank you, the generous donors and friends of Murshid Hospitals. I thank you, the respected sponsors of Murshid Hospitals this evening. And I thank you, all of you, all the guests sitting in this room, for coming over here and giving your precious time. You deserve not only this little thanks from my side, for our side rather, but you deserve the abundance of blessings of Almighty God for helping us and supporting us in this act of serving humanity. I thank you very much. Thank you very much, and a very nice and a very
kind of all of you to come to this fundraising ceremony and giving us time, and your precious time is very valuable for us. Thank you very much for coming. Allah Hafiz and see you.